Bismillahirrahmanirrahim, starting with the great name of Allah, most merciful and most beneficial. Welcome to the Beria Model School PNAD Moripur Primary Wing. Welcome to the online learning process, students. I, Razia Shabir Ahmad, your English teacher, and we are going to take start. And it's our first chapter, the hummingbird who chewed bubble gum. ओके स्टूडेंट्स, इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड्स आर ऑन अ सी वॉयज, यानी एक समंदरी सफ़र पर हैं आप. अ स्टॉर्म ब्रेक्स आउट एंड योर शिप इज blown to an unknown island. You land on the island and discover that nobody lives there. आप अपने दोस्तों के साथ एक समंदरी सफ़र पर हैं और आपका सामना एक तूफ़ान से हो जाता है और आपकी कश्ती एक अननोन ऐसे जजीरे पर चली जाती है जहाँ कोई नहीं रहता. Now give me the answer of following question. Where will you find shelter? What will you eat? What will you drink? How will you spend your time on the island? And how will you send a message to your families, right? Did you ever see the hummingbird? Look at your screens. This beautiful bird is called hummingbird. It's a nectar feeding bird who suck the nectar from the flowers. जो कि फूलों का रस पीता है. इस परिंदे को hummingbird कहते हैं. Now I'm going to take start for reading and I will translate it. There was a little hummingbird in my neighborhood. Neighborhood पड़ोस में, बराबर में, right? एक छोटा सा नन्हा परिंदा मेरे बराबर में पड़ोस में रहता था. It usually उमूमन तौर पर, rarely, sat on my windowsill. Windowsill, you can see in the picture what is windowsill. उमूमन वो आकर मेरी विंडोसिल पर बैठ जाता था. I enjoyed hearing her sing. मुझे उसका गाना बहुत पसंद था. Suddenly mean अचानक. I didn't see the little hummingbird for some days. कुछ दिनों से मैंने उस परिंदे को नहीं देखा. वो परिंदा जो यूजुअली आकर मेरी विंडोसिल पर बैठ जाता था. ये ऑथर कह रहा है, यानी स्टोरी राइटर. About a week ago, तकरीबन एक हफ्ते पहले, a bad storm came along. I felt sorry for the hummingbird. एक बहुत तेज़ तूफान आया था और I felt sorry यानी दुखी होना. I felt sorry for the hummingbird. मुझे hummingbird के लिए बहुत दुख हो रहा था. Then one beautiful sunny morning, beautiful, एक खूबसूरत सी ऐसी सुबह जिसमें सूरज भी निकला हुआ हो. The little hummingbird reappeared on my windowsill. Reappeared यानी दोबारा से नज़र आना. खूबसूरत सी सुबह थी जब सूरज निकला हुआ था. And I saw again the little bird was again sitting on my windowsill. दोबारा से वो परिंदा little hummingbird मेरी windowsill पर आके बैठ गया. Where have you been? I asked the little hummingbird. मैंने पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी? Just out flying around, replied the little hummingbird. बस यहाँ आस-पास ही मैं उड़ रही थी, replied the hummingbird. Hummingbird ने जवाब दिया. Did you find anything to eat? I asked. क्या तुम्हें कुछ खाने को मिला? Oh, there's plenty of food. हाँ, खाने को तो बहुत कुछ है. But all twigs and straws were blown away by last week's storm. पिछले हफ्ते आने वाले तूफान से सारे नन्हे पतले पतले तिनके ट्विक्स वगैरह जो होते हैं जिससे ये लोग बर्ड्स अपना नेस्ट बिल्ड करते हैं, वो उड़ चुके थे. Said the little hummingbird in sad voice. उसने बड़ी दुख भरी आवाज़ में कहा. I'm sorry to hear that. मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के. What are you going to do? I asked. ओहो, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के. But now what are you going to do? अब तुम क्या करने जा रही हो? मैंने पूछा. The little hummingbird said, I am not sure, but I have a favor to ask you. लिटिल हमिंगबर्ड कहती है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे आपकी फेवर चाहिए, मदद चाहिए. श्योर, एनीथिंग, आई सेड. हाँ, क्यों नहीं, एनीथिंग, आई विल हेल्प यू. कैन यू प्लीज़ गिव मी सम बबल? आस्क्ड द लिटिल हमिंगबर्ड. क्या आप मुझे कुछ बबल गम दे सकते हो? उसने मुझसे पूछा. आई वॉज सरप्राइज दैट अ हमिंगबर्ड वुड आस्क फॉर अ बबल गम. इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर द ऑथर कि कोई बर्ड भी बबल गम मांग सकती है. बट
आई वॉज हैप्पी टू शेयर इट विद माई फ्रेंड, लेकिन उसे खुशी थी कि वो अपने फ्रेंड के साथ, बिकॉज वो लिटिल हमिंग बर्ड को अपना फ्रेंड समझता था, और उसकी उसे ही वॉज फीलिंग हैप्पी कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, राइट। द लिटिल हमिंग बर्ड च्यूड द गम balls and then blew a bubble bigger than her body. She took the bubble gum from the boy, एंड उसने क्या किया, उसे च्यू किया, एंड देन ब्लू अ बबल, एक बबल बनाया बबल गम से, बिगर देन हर बॉडी, अपनी बॉडी से भी बड़ा। थैंक्स शी सेड एंड फ्लू अवे, उसने कहा शुक्रिया, एंड फ्लू अवे, उड़ गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटिल हमिंग बर्ड वॉज बैक, अगले दिन दोबारा से हमिंग बर्ड बैक यानी वापस आई। शी आस्क्ड फॉर अ फ्यू मोर पीसेज ऑफ बबल गम, उसने अगेन मुझसे कहा गिव मी सम बबल मोर बबल gum pieces for give me some more pieces of bubble gum. I did not know why she wanted bubble gum. उसे नहीं मालूम था कि वो बबल गम क्यों मांग रही है, बट आई वॉज हैप्पी टू शेयर इट विद हर, बट उसे फीलिंग ही वॉज फीलिंग हैप्पी कि वो उसकी मदद कर रहा है। शी थैंक्ड मी अगेन एंड फ्लू अवे, once again the little hummingbird thanked him and flew away. 2 days later it was nice and sunny. Once again he is saying कि 2 दिन बाद एक नाइस डे था जब सन जो है निकला हुआ था। I was playing outside, मैं बाहर खेल रहा था। Suddenly अचानक से I heard a voice calling out my name, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो मेरा नाम पुकार रही है। I looked around but didn't see anyone. I see here and there but didn't find anybody. उसने यहाँ वहाँ देखा पर उसे कोई नज़र नहीं आया। The voice called out my name again, दोबारा से मुझे मेरा आवाज़ आई, मेरा नाम पुकार रहा है कोई। This time I realized it was coming from the tree in my backyard. उससे पता चला कि आवाज़ जो है ट्री से आ रही है, दरख्त से आ रही है जो उसके घर के पिछले हिस्से में वाक़ है, राइट। तो व्हाट यू थिंक हु वाज कॉलिंग हिज नेम? आप गैस कर सकते हो क्या? व्हाट यू थिंक कि कौन उसका नाम पुकार रहा होगा? फ्रॉम द ट्री, होपफुली एक बर्ड ही पुकार सकता है। आई सॉ द लिटिल हमिंग बर्ड अप ऑन द ट्री, मैंने देखा लिटिल हमिंग बर्ड को जो दरख्त के ऊपर है। शी वॉज सिटिंग इन अ रेड एंड ब्लू नेस्ट, very surprising. Hummingbird was sitting in a nest in the color of, which is the color of red and blue and red color के नेस्ट में बैठी हुई है। लुक व्हाट यू हेल्प मी बिल्ड, वो कहती है देखो तुमने क्या बनाने में मेरी मदद की। said the little hummingbird. What do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा? I asked, मैंने पूछा। Well, there weren't anything left after the storm. तूफान आने के बाद द लिटिल हमिंग बर्ड रिप्लाइड दैट कि आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान आने के बाद कुछ भी नहीं बचा था जिसकी मदद से शी कैन बिल्ड अ नेस्ट फॉर हर सेल्फ, वो अपने लिए एक नेस्ट बनाती है वेयर शी कैन ले द एग्स, ठीक है। और शी आस्क फॉर हर फ्रॉम हर फ्रेंड टू हेल्प हिम। I needed something to build a nest where I could lay my eggs. मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी जिससे मैं अपना नेस्ट बनाती और वहाँ अंडे देती। Your bubble gum helped me to build this nest. तुम्हारी बबल गम ने मेरी मदद की नेस्ट बनाने में। Thank you, said the little hummingbird. वो उसे थैंक करती है, शुक्रिया अदा करती है लिटिल हमिंगबर्ड। I climbed up the tree. मैं दरख्त के ऊपर चढ़ा। And sure enough there were 2 little eggs the size of jelly beans lying in the nest made up of bubble gum. जब मैं ऊपर चढ़ा दरख्त पर तो मैंने देखा कि रेड एंड ब्लू कलर के नेस्ट में 2 एग्स पड़े हुए हैं लिटिल हमिंग बर्ड के, और उनका साइज़ कितना है? जेली बीन्स का, जो अमूमन आप जेली बीन्स खाते हो उसकी साइज़ के 2 छोटे छोटे एग्स वर इन द नेस्ट ऑफ विच वॉज मेड अप ऑफ बबल गम, और द कलर ऑफ नेस्ट वॉज ब्लू एंड रेड। Now students, you can see the picture of the nest and the boy who was climbing up the tree and the little hummingbird. You can
see the picture of the scene which was uh, we discussing in our chapter, right? I told myself, I'm so happy I shared my bubble gum with the hummingbird. मैंने खुद से कहा मैं बहुत खुश हूँ मैंने अपनी बबल गम शेयर की आई शेयर माई बबल गम विद माई फ्रेंड मैंने अपने फ्रेंड के साथ अपनी बबल गम शेयर की शी हैड बिन एबल टू बिल्ड हर नेस्ट बिकॉज ऑफ इट एंड मेरी बबल गम की हेल्प से मदद से वो इस काबिल हुई कि शी अगेन बिल्ड हर नेस्ट सो डू रिमेंबर टू शेयर योर थिंग्स याद रखें अपनी चीज़ें शेयर करें एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी वॉज सेम always share your things with your friends, with your neighbors, and with your siblings, and anybody who need your things. You should share with them, right, student? Hopefully, it was a very interesting story. Now, your home task is that make a title page and do one page writing on your text copy, and your writing should be very neat and very clean. Okay, students. Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, most merciful and most beneficent. Welcome to the Badia Model School PNAD Moripur Primary Wing. How are you, students? Welcome to the online learning process. Students, this is grade 4 and it's your English class. I, Razia Shabir Ahmed, your English teacher. In my previous lecture, I had translated and read the chapter The Hummingbird Who Chewed Bubblegum. Now take out your handouts and I'm going to explain it. Words meaning hummingbird, a small nectar feeding bird, एक छोटा सा परिंदा जो फूलों का रस पीता है. It's called hummingbird. Twigs means small branches, छोटी छोटी branches, छोटे छोटे तिनके जिसकी मदद से birds अपने nest build करते हैं, बनाते हैं घोंसले. Shrugged means shiver. Shrugged जब आप देखते हो किसी bird की feathers वेट हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, तो वो उसको हिलाते हैं, शिवर करते हैं. दिस इज कॉल्ड श्रग्ड. स्टॉर्म, अ वायलेंट वेदर कंडीशन. स्टॉर्म मीन वायलेंट वेदर कंडीशन, ऐसी वेदर कंडीशन, मौसम का ऐसा वो जिससे तूफान जिसे हम कहते हैं वायलेंट वेदर कंडीशन स्टॉर्म, राइट. प्लेंटीफुल सप्लाई. प्लेंटी मीन जब कोई चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो, तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास इस पर्टिकुलर चीज़ की प्लेंटी मौजूद है, ज़्यादा क्वांटिटी में ये चीज़ अवेलेबल है, राइट. नाउ I'm going to explain question and answer. Open it. Did the boy like the company of the little bird? How can you tell? आप कैसे कह सकते हो कि लड़का बॉय जो था वो लिटिल बर्ड की कंपनी को पसंद करता था. आंसर यस, बिकॉज ही नोटिस द बर्ड्स एब्सेंस एंड ही इंजॉयड हर सिंगिंग. ही वॉज हैप्पी टू हेल्प हिज फ्रेंड. क्योंकि उसने नोट किया था, यस क्योंकि हाँ जी उसने नोट किया था कि बर्ड काफ़ी दिनों से गायब है और इसके अलावा वो उसके गाने को भी पसंद करता था जो वो आवाज़ निकालती थी और वो हैप्पी फील करता था जब वो उसकी हेल्प करता था, राइट. Question number 2. There was something unusual about the nest that the boy saw. What was it? उस नेस्ट में कुछ नया था, अनयूजुअल था. वो क्या चीज़ थी? आंसर, इट वॉज रेड, ब्लू एंड ऑरेंज एंड मेड ऑफ बबल गम. वो नेस्ट रेड, ब्लू और ऑरेंज कलर का था और मेड ऑफ बबल गम से बना हुआ था, जो बेसिक एंड मेजर चेंज था. हाउ डिड ही फील व्हेन ही सॉ द नेस्ट एंड द एग्स इन इट? Is there any link between these feelings and the last sentence of the story? बॉय को कैसा लग रहा था जब उसने नेस्ट में एग्स देखे और क्या लिंक है लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी का इस फीलिंग के साथ? आंसर, ही वॉज हैप्पी दैट ही शेयर्ड समथिंग विद हिज फ्रेंड. वो खुश था कि उसने अपनी कोई चीज़ अपने दोस्त के साथ शेयर की. एंड द लिंक इज़ दैट, यस द लिंक इज़ दैट फ्रेंड्स शुड हेल्प ईच अदर. लिंक इज़ दैट फ्रेंड्स को एक दूसरे की
मदद करनी चाहिए। अब आपका असाइनमेंट नोटबुक के लिए यानी क्लास वर्क टेक्स्ट कॉपी के लिए ये है, मेक द सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन योर नोटबुक: birds, bubblegum, neighborhood, friends and share. Now we are going to take start for the grammar section, but before I would like to give you some information about it. English language depends on 8 parts which are called parts of speech, and these are as follows. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली 8 पार्ट्स पे डिपेंड करती है और इन पार्ट्स को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड दीज आर नाउन, एडवर्ब, verb, adjective, preposition, conjunction, pronoun and interjection. Students, we will learn in detail about conjunction, but conjunction में भी particularly we will learn the uses of so and because. ठीक है, the definition of conjunction is conjunction join together the related phrases and sentences. ठीक है, कंजंक्शन दो जुमलों को या दो फ्रेजेस को कनेक्ट करता है और ये कनेक्ट होते हैं जिन वर्ड्स के साथ, उससे हम कहते हैं कंजंक्शन, लाइक एंड, बिकॉज, बट, सो। ठीक है, बट हम डिटेल में जिनके बारे में जिनके यूजेस पढ़ेंगे वो है बिकॉज एंड सो। हमारी जो सिलेबस में गिवन टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ बिकॉज एंड सो. सो आई विल गिव यू द मोर डिटेल्स अबाउट यूजेस ऑफ बिकॉज एंड सो विच आर कंजंक्शंस. ठीक है, एंड कंजंक्शंस कहते हैं उन वर्ड्स को जो दो फ्रेजेस को, रिलेटेड फ्रेजेस और दो रिलेटेड सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है. ठीक है जनाब, नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 16. We use so to express the result of something and because to express the cause or reason for something. ठीक है, हम यूज़ करते हैं so जब हमने किसी चीज़ का रिजल्ट शो करना हो, और हम because वहाँ लिखते हैं जहाँ हमने किसी बात के लिए रीज़न देनी हो. ठीक है, you share your bubble gum with me so I could build this nest. आपने अपनी बबल मुझसे शेयर की तो इस वजह से मैं अपना नेस्ट बना सकी. ठीक है, आपने देखा कि सेकंड सेंटेंस में रिजल्ट था किसी काम का, उसकी फर्स्ट सेंटेंस में वो कहती है वर्ड कि आपने मुझसे बबल शेयर की और उसके रिजल्ट के तौर पर मैं अपना नेस्ट बना सकी. अब जब सेकंड सेंटेंस में आपके पास किसी चीज़ का रिजल्ट है, नतीजा है, तो आपने वहाँ सो यूज़ करना है. लेकिन अगर आप सेकंड सेंटेंस में किसी फर्स्ट सेंटेंस की काम की रीज़न दे रहे हो, वजह दोगे, रिजल्ट नहीं शो हो रहा है वहाँ, तो आपने वहाँ बिकॉज लिखना है. ठीक है, इसकी बहुत इजी एग्जांपल आपको देखो स्क्रीन पे. आई वेंट टू बेड, आई वॉज टायर्ड, आई वेंट टू बेड अर्ली. ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, आप कहते हो मैं थका हुआ था, इस वजह से रिजल्ट के तौर पर आप आई वेंट टू बेड अर्ली, तो मैं सोने चला गया. ठीक है, आपके फर्स्ट सेंटेंस में आपने बताया कि आप थके हुए थे और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आप जल्दी सोने चले गए. ठीक है, अब इसी का सीक्वेंस अगर आप चेंज कर देते हो, आप कहते हो आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं बेड पर जल्दी चला गया. अब आप जल्दी बेड पे चले गए, क्यों चले गए, आपने वहाँ रीज़न देनी है. ठीक है, वजह क्या थी बेड पे जल्दी जाने की, तो यहाँ फिर आपने सो नहीं लिखना क्योंकि अब रिजल्ट नहीं बताओगे, अब आप रीज़न दोगे. सीक्वेंस चेंज हो चुका है. यू विल से आई वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थक गया था. राइट, इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में अगर आपने रिजल्ट शो करना है तो रिजल्ट शो हो रहा है तो आपने सो लिखना है, और अगर आपको किसी चीज़ की रीज़न देनी है तो बिकॉज. अब इस एक्सरसाइज को देखें. आई वॉज टायर्ड डैश आई वेंट टू बेड अर्ली. सेम एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा. आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, सो लिहाजा आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं जल्दी बेड पे सोने चला गया या बेड पे जल्दी चला गया. आई टर्न द फैन ऑन, मैंने फ़ैन ऑन कर दिया. इट वॉज़ वेरी वार्म, अब आपने क्यों किया हुआ ऑन फैन, आपने रीज़न देनी है. सही है, तो आप लिखोगे इट वॉज़ बिकॉज इट वॉज़ वेरी वार्म. राइट, अब आप देखें नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है
स्टूडेंट्स, ये आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 की एक्सरसाइज है। आप बुक अपने सामने रखें और उसके साथ देखते रहें, ठीक है। सी है, शी वॉज एंग्री डैश एवरी वन मेड फन ऑफ हर। वो गुस्से में थी क्योंकि सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो यहाँ आपने लिखना है बिकॉज, राइट। इसी तरह आपने आपका होम टास्क जो है पेज नंबर 16 की एक्सरसाइज नंबर 2 है जो आपने करनी है, और पेज नंबर 17 की एक्सरसाइज है वो आपने अपनी बुक में करनी है, राइट। और इसके अलावा वर्कबुक में पेज नंबर 11 है, वो भी सो एंड बिकस की एक्सरसाइज है। सेम आपने उसको भी डन करना है एंड उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके आपने उसकी पिक्चर लेके मुझे सेंड करनी है, ठीक है। और दिस वर्क शुड बी डन, आपने मंडे को अपनी कॉपीज़ या बुक वर्क दोनों मुझे शो करना है। इसके बाद अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आता बेटा, यू कैन आस्क टू मी वेरी फ्रीली, आई एम अवेलेबल फॉर यू ड्यूरिंग द ऑफिशियल टाइमिंग। अल्लाह हाफिज़।